پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ہر دم تیار، وطن عزیز کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں خطاب، کہا آپریشن غضب للحق پوری قوت اور عزم کے ساتھ جاری ہے، افغان طالبان سے جڑے دہشت گرد نیٹ ورکس اور ان کے سہولت کاروں کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعظم کا مارکہ حق میں بھارتی غرور خاک میں ملانے پر فیلڈ مارشل سمیت افواج پاکستان کو ایک بار پھر خراج تحسین، مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے عوام کی غیر متزلزل حمایت کا بھی اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ، فیکلٹی اور زیر تربیت افسران سے خطاب کے دوران پاکستان دشمنوں کو للکار دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مارکہ حق کے دوران افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت ناکام بنائی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں تاریخی کامیابی پر بہادر افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے واضح کیا کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ہر دم تیار ہے۔ It is my profound honor and a pleasure to be here amongst the brave sons and daughters of Pakistan. I salute the military leadership. No enemy of Pakistan, inshallah, will dare to turn their nefarious eye towards us. آپریشن غضب للحق پوری قوت اور عزم کے ساتھ جاری ہے۔ افغان طالبان سے وابستہ دہشت گرد پراکسیز اور ان کے سہولت کار بہادر پاکستانی افواج کے نشانے پر ہیں۔ وطن عزیز کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ The ongoing Ghazab lil-Haq campaign has instilled fear into the heart of our enemy. It is our firm resolve that we will not rest until we eradicate the menace from the face of Pakistan. انشاءاللہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے علاقائی و عالمی امن و استحکام اور ترقی کے لیے پاکستان کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہمارے دانشمندانہ طرز عمل اور موقف کو پوری دنیا نے تسلیم کیا۔ پاکستان کشمیری اور فلسطینی عوام کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا۔ دشمن دہشت گردوں کی سرپرستی اور منفی پروپیگنڈا کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ پاکستان اپنی ترقی کی ڈگر پر بڑھتا چلا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملک دشمنوں کو للکار، کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا مسلح افواج عوام کی ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ کوئٹہ گیریجن کے دورے میں کہا کہ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی ختم کر کے رہیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پاکستان کے دشمنوں کو دبنگ پیغام، دو ٹوک بتا دیا کہ بیرونی سرپرستی میں دہشت گردی اور پروپیگنڈا سے پاکستان کی ترقی رکنے والی نہیں۔ دشمن قوتوں کے عزائم کو ریاست اور عوام کی یکجہتی ناکام بنا دے گی۔ سپہ سالار کا ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ، بلوچستان میں پائیدار امن کے لیے عوامی فلاح اور ترقی ناگزیر قرار دے دی۔ کوئٹہ گیریجن کے دورے کے دوران کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج میں خطاب، اعلیٰ تربیتی معیار کو سراہتے ہوئے جدید جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ رہنے پر زور دیا۔ افسران کو نئی ٹیکنالوجیز اور ملٹی ڈومین آپریشنز پر مہارت حاصل کرنے کی ہدایت کی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ بلوچستان میں عوامی بہبود اور سماجی ترقی کے لیے صوبائی حکومت کے اقدامات کو قابل تحسین قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کوئٹہ میں ایپکس کمیٹی کا اجلاس، بلوچستان میں سیکیورٹی، ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت، منصوبہ بندی اور دیگر امور پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے انسدادی دہشت گردی کے لیے اقدامات پر فیلڈ مارشل اور پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا اور صوبے میں عوامی فلاح و بہبود کے لیے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کے اقدامات کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے بلوچستان کی رخشان ڈویژن میں فرنٹیئر کورٹ تعینات کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل، وزیر اعلیٰ بلوچستان، وفاقی وزراء اور دیگر نے شرکت کی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے شیوا میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن 17 مئی سے جاری سرچ اینڈ سینیٹائزنگ آپریشن میں 22 خوارج ہلاک ہو گئے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ ISPR کے مطابق خوارج مقامی آبادی کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے رہے ہیں۔ عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایران ڈیل کی بھیک مانگ رہا ہے، وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھ گئے ہیں، امید ہے ہمیں کارروائی نہیں کرنی پڑے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی واشنگٹن میں میڈیا ٹاک، کہا ایران پر حملے سے 1 گھنٹہ دور تھے، جنگی جہازوں پر میزائل بھی لوڈ ہو چکے تھے۔ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے درخواست کی گئی اور فیصلہ مؤخر کیا۔ بمباری کے بغیر معاملات طے ہو جائیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ امریکی صدر دھمکی کو امن کا موقع کہہ رہے ہیں۔ ایران کسی بھی جارحیت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا کہ ہمارے ہاں
सरेंडर की कोई गुंजाइश नहीं। तर्जुमान ईरानी पार्लिमानी कमीशन इब्राहिम रजाई ने कहा, अमरीकियों को हमारी शराइत के सामने हथियार डालना होंगे। जारहियत के जवाब में अमरीकी सदर को मजीद शर्मिंदा करेंगे। ईरान की खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के कमांडर मेजर जनरल अली ने कहा, ईरानी अफवाज हर किस्म की जवाबी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। दोबारा हमले की सूरत में फौरी, फैसलाकुन और वसी पैमाने पर रद्द-ए-अमल सामने आएगा। बड़ी और अहम खबर आपको दें कराची से। कराची में भत्ताखोर एक बार फिर सर उठाने लगे। 10 रोज के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में भत्ताखोरी के 4 वाकयात सामने आ गए हैं। न्यू कराची में 2, नॉर्थ कराची और सदर में 2 दुकानदारों को पर्चियां मिली हैं। भत्ताखोरों की धमकी आमेज ऑडियो मैसेज और पर्चियां समाने हासिल कर ली हैं। मजीद जानते हैं, ब्यूरो चीफ असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम खान, बताइए इस हवाले से अभी क्या तफसीलात आपके पास हैं? देखिए, कराची में भत्ताखोरी पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। गुज़िश्ता अगर हम बात करें चंद माह पहले भी भत्ताखोरी की एक लहर आई थी, जिसका पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की और कुछ कंट्रोल किया। लेकिन अब 10 रोज में 4 वाकयात हुए हैं। 13 मई को इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के दुकानदार को 25 लाख रुपए भत्ते का एक ऑडियो मैसेज मौसूल हुआ, जिसमें कहा गया कि अगर भत्ता नहीं दिया गया तो उसकी जान को खतरा ला गया। इसके साथ साथ न्यू कराची की अगर हम बात करें, वहाँ पर 9 मई को एक दुकानदार से 16 लाख रुपए और 17 मई को एक दुकानदार से 10 लाख रुपए भत्ता तलब किया गया। नागन चौरंगी में एक दुकानदार को 15 लाख रुपए भत्ते की पर्ची मौसूल हुई है। और तमाम इन चारों वाकयात में अगर हम देखें तो जो एक ऑडियो मैसेज था या जो पर्चियाँ थी, उसमें ये धमकी दी गई कि अगर पुलिस को या कानून नाफिज करने वाले इदारे को बताया गया तो उनके और उनके ख़ानदान को नुकसान पहुँच सकता है। और उसके साथ साथ 2 वाकयात में ये देखा है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी आई है कि एक वारदात में भत्ते की पर्ची देने के लिए मोटरसाइकिल पर मर्द और औरत आते हैं और भत्ते की पर्ची देके जाते हैं। और एक और वाकये में नशे के आदी शख्स को भत्ते की पर्ची दुकानदार तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में दुकानदारों ने थाने को एक मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दे दी और प्रेडी थाने ने जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के दुकानदार को भत्ते की पर्ची मैसेज मौसूल हुआ था, उसका मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये पुलिस के लिए एक फिर चैलेंज, 10 रोज में भत्ताखोरी के लिए 4 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। इससे एक अलग ये रहा है कि जिस तरह ताजरों ने ये शिकायत की कि न्यू कराची के जो इलाका है उसमें भत्ताखोरी के वाकयात बढ़ रहे हैं और मुसलसल भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ये और भी पर्चियां दुकानदारों को मिली है, लेकिन ये अभी 3 वाकयात। असलम, आपसे एक बार फिर से बात करेंगे। भत्ताखोरों की धमकी आमेज ऑडियो मैसेज हमें मौसूल हुआ है, वो जरा अपने अवाम को सुनाते हैं। पहले सलाम, क्या हाल है? खैरियत से हो? तबीयत ठीक ठाक है? देखो, मैंने तुम्हें मैसेज लिख के भेजा है ना, इसका जवाब मुझे दे, ठीक है ना? अगर कोई भी तूने होशियारी किया, अगर आगे पीछे गया, मेरा नंबर किसी को दिया तो उसी टाइम तुम्हें दूंगा। मेरे लड़के तुम्हारे पीछे ही है, समझा ना? असलम खान, कहिएगा, ये ऑडियो मैसेज आपने भी सुना होगा, जिस तरह से वो धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे अगर मैसेजेस या कॉल्स या नंबर आगे दिया गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह की धमकी आमेज मैसेजेस आ रहे हैं, पर्चियां भी समाने हासिल कर ली हैं। देखिए, मैं कहूँगा कि एक ख़तरनाक सूरत हाल है कि धमकी आमेज़ उसके ख़ानदान को और उसको नुकसान पहुँचाने की धमकी। फिर जो पर्चियाँ मिली हैं उसमें भी ये कहा गया है कि पुलिस को या कानून नाफिज करने वाले इदारों को ना बताया जाए। और हर चारों अगर हम केसेस देखते हैं तो उसमें यही खबरदार किया गया है कि उन पर नज़र रखी जा रही है। जो लड़के हैं वो टारगेट पर बैठे हुए हैं। वो दुकानदार अगर पैसे लेकर वहाँ तक नहीं पहुँचा तो उनको या उनके ख़ानदान को, जो मुतासरा दुकानदार हैं, उनको नुकसान पहुँचाया जा सकता है। तो ये एक, मैं कहूँगा कि तशवीशनाक सूरत हाल। पहले भी एक लहर आई थी जिस पर पुलिस ने किसी हद तक कंट्रोल किया, लेकिन फिर ये वाक़यात सामने आए हैं। और न्यू कराची में ताजरों का कहना है कि ये वाक़यात बढ़ रहे हैं। ये 3 वाक़यात सामने आ गए हैं और कुछ दुकानदार यकीनी तौर पर अभी सामने नहीं आए होंगे जिन्होंने पुलिस को रिपोर्ट की होगी, लेकिन पुलिस तक जो रिपोर्ट पहुंची उसमें न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में 2 दुकानदारों ने रिपोर्ट किया और उसके साथ साथ ठीक है, 10 रोज के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में भत्ताखोरी के 4 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। असलम खान, ब्यूरो चीफ कराची, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बात करें ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के केस की, जिसमें हर गुजरते दिन के साथ नए इंकशाफात हो रहे हैं। कोकेन क्वीन का मजीद 11 मुकदमात में अदालती रिमांड जिस्मानी रिमांड में तब्दील हो गया। पुलिस 15 मुकदमात में 22 मई तक मुल्जिमा से तफ्तीश करेगी और मीडिया को अदालती कार्रवाई की कवरेज से भी रोक दिया गया।
ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी तमाम मुकदमात में जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने मुलजमा को अदालती रिमांड पर भेजने के तमाम फैसले कालअदम करार देकर पुलिस को हदायत की कि मुलजमा को जिस्मानी रिमांड के लिए मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। दरख्शां और गिजरी पुलिस ने 11 मुकदमात में मुलजमा को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर शकील अब्बासी ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जबकि मुलजमा के वकील जैन अली आगा ने मुखालफत की। मुलजमा ने एक मरतबा फिर दौरान समाअत पुलिस अफसर पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया। अदालती इजाजत से मुलजमा की कोर्ट रूम में वकलाए सफाई से मुलाकात भी करवाई गई। अदालत ने अदालती रिमांड को जिस्मानी रिमांड में तब्दील कर दिया और पिंकी को 22 मई को दोबारा पेश करने का हुक्म भी दे दिया। मुलजमा अनमोल उर्फ पिंकी को अब तक 4 मरतबा जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जा चुका है। तफ्तीशी अफसरान का कहना है कि मुलजमा दौरान तफ्तीश नए नए इंकशाफात कर रही है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ लियाकत अली राना, समा, कराची। पिंकी के नेटवर्क से जुड़ा है कौन कौन, पर्दा उठने को है। कई मोतबर लोग पिंकी के लिस्ट में मौजूद, सब जल्द सामने आएंगे, ऐसा कहना है आईजी सिंध जावेद आलम ओझू का। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इस केस में जो मुलव्वस होगा किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मैं आपके साथ वो लिस्ट जो अभी तक नाम आए वो शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बड़े ऐसे नाम भी हैं जो मोतबर हैं। खामखा किसी को मिलाइन करना नहीं चाहते, लेकिन जो सप्लायर है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। बल्क में लेके इससे आगे बेचते थे वो ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो भी सप्लायर का काम कर रहे हैं। उनको किसी भी सूरत में हम नहीं छोड़ेंगे। सब नाम अल्टीमेटली आपके होंगे, आपके पास इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। बैंकिंग के जब आ जाते हैं मसाइल और उनकी इंफॉर्मेशन आ जाती है तो पुलिस डायरेक्टली नहीं ले सकती है। FIA को लिख के अपनी तफ्तीश में उनको मिला लिया है। ऐसे बहुत से अकाउंट मिलेंगे, हमारे खदशा है और हमारी उम्मीद भी है उधर भी पर्चा होगा। आप देखिएगा कि इंशाल्लाह अल्टीमेटली FIA में भी। कोकेन क्वीन को पहली अदालती पेशी पर प्रोटोकॉल देने वालों की बिल आखिर छुट्टी कर दी गई है। SSP सिटी सैयद अली हसन को मुअत्तल कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह की जानिब से SSP सिटी की मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की अदालत में पेशी के दौरान बद इंतजामी और नाअहली पर SSP सिटी को मुअत्तल किया गया। यहाँ हम खबर अनमोल उर्फ पिंकी केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पिंकी से राबते में रहने वाले CTD के 2 अहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। बात करेंगे इसी से मुतालिक। शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, क्या मालूम हो पाया? देखिए, बिल्कुल जिस तरह आईजी सिंध की जानिब से दावा किया गया था कि पिंकी के गिर्द जो है मजीद घेरा तंग किया जाएगा, तो आज ये अपडेट सामने आई है कि CTD के जो 2 एहलकार हैं उनको भी हिरासत में लिया गया है। जो एहलकार हैं उनकी शनाख्त जो है कपिल अवान और सिपाही अली कुरैशी के नाम से की गई है। दोनों को जो है हिरासत में लिया गया है और उन पर इल्ज़ाम है कि वो पिंकी से राब्ते में थे। तमाम CTD के अंदर भी एक जो है मुलजिमा का केस सामने आ गया है। 2018 में पिंकी ऊपर 9C का जो है मुकदमा दर्ज किया गया था। मंशात फरोशी का इल्ज़ाम था। ताहम अब इस केस की जो है पैरवी CTD करेगी और अपने केस के अंदर पिंकी की गिरफ्तारी भी डालेगी। हैदराबाद में पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए लेडी मनशियात फरोश अम्बरीन उर्फ गुड्डी चांडियो को गिरफ्तार कर लिया है। SSP हैदराबाद शाहजेब चाचड़ का कहना है कि गुड्डी चांडियो रिटायर्ड DSP की अहलिया है, जिसका नेटवर्क तालीमी इदारों तक फैला हुआ है। यहाँ पेशरफ्त हुई है। हैदराबाद में पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए लेडी मनशियात फरोश अम्बरीन उर्फ गुड्डी को गिरफ्तार कर लिया है। कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से फैसलाबाद तक मनशियात का बड़ा नेटवर्क बेनकाब हुआ है। फैसलाबाद में पुलिस ने मनशियात फरोशी में मुलव्वस 70 से जायद खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है। बेशतर खवातीन तालीमी इदारों और हॉस्टल्स के अतराफ मनशियात फरोख्त करती रहीं और इस सिलसिले में पकड़ी भी गई हैं। RPO फैसलाबाद सुहेल अहमद सुखेरा के मुताबिक मनशियात फरोश गैंग की सरगना शाहिदा, राबिया, आसिया और सायरा को भी हिरासत में ले लिया गया है। अहम पेशरफ्त सामने आई है जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। हैदराबाद से लेके कराची तक और कराची से लेके फैसलाबाद तक मनशियात का बड़ा नेटवर्क बेनकाब हुआ है। फैसलाबाद में पुलिस ने मनशियात फरोशी में मुलव्वस 70 से जायद खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है।